Hello everyone, I Akshita Sharma welcome you all back to the maths class. Children, here we are studying chapter number 12, weight. In our previous class, we have started solving exercise number 12. Children, we have already solved question number 1 to 5. They all were related to word problems. Now, in this class, we are going to move on further. In this class, we are going to solve question number 6 to 8 of the same exercise. Let's get started with question number 6 here. This is also word problem. Let us read the question first. Question number 6 is, Savita bought 2 kg of cabbage, 4 kgs of cucumber, 3 kg 700 gram of yam and 2 kg 900 gram of other vegetables from the market. Find out the total weight of her bag. Children, we have already understood the relationship between kilograms and grams. We have learned how to convert them and how to solve the different type of questions related to different operations of addition, subtraction, multiplication and division. Since we have read this question, it is asking about the total weight. तो आपको पता है जब क्वेश्चन में टोटल वेट पूछा जाता है, हमने यहाँ देखा सविता वेजिटेबल शॉपिंग करके लाई है, अपने बैग में अलग अलग सब्जियां लाई है. यहाँ पर है कैबेज, कुकुम्बर्स, यैम और कुछ अदर वेजिटेबल्स भी हैं. जब हमें पूछा जा रहा है कि टोटल वेट निकालना है, सो व्हाट वी विल डू हियर, वी विल ऐड ऑल द गिवन अमाउंट हियर फॉर केजीज एंड ग्राम्स, बोथ द यूनिट्स वी आर गोइंग टू ऐड. सो लेट अस स्टार्ट एडिंग हियर. हम यहाँ स्टार्ट करेंगे, केजी लिखते हैं और दूसरी साइड लिखते हैं ग्राम्स, बिकॉज दीज बोथ यूनिट वी हैव टू ऐड हियर. सबसे पहले हमारे पास है कैबेज. वी विल राइट डाउन द क्वांटिटी हियर. देखिए कैबेज में लिख रहा है 2 kgs, तो केजी में हमने लिख दिया है 2, ग्राम्स में कुछ भी गिवन नहीं है. वी विल राइट डाउन 0 हियर. नेक्स्ट वी हैव फॉर कुकुम्बर्स. चिल्ड्रन, कुकुम्बर शी हैज बॉट 4 kgs. अगेन ग्राम में नहीं दिया हुआ है, हमने 0 लिख दिया है. यैम, फॉर यैम वी हैव 3 kgs एंड 700 ग्राम. सो केजीज में हमने लिख दिया है 3 और ग्राम्स में यहाँ पर है 700 ग्राम्स. At last we have some other vegetables we will write down here. So children, other vegetables are bought for 2 kg and 900 gram. In kg we will write down 2 and in grams we have 900 grams. Now this is quite simple. We have to add here. We will start adding from grams here. देखिए 0 0 0 ही रहेगा, फिर से 0 0 0. Now 9 plus 7 we will get here 16. So this is 1600 gram. We have got our answer from gram unit. Now we have to find out for kgs. 2 plus 4 is 6, 6 plus 3 is 9, 9 plus 2 is children 11. So children, this is our answer, 11 kgs, 1600 gram. But this is not our final answer. यहाँ पर क्योंकि ग्राम्स में देखिए 1000 से ज़्यादा आंसर आ रहा है, सो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट हियर 1000. यहाँ हम 1000 ग्राम सब्ट्रैक्ट कर देंगे बिकॉज 1000 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 kg. ये ऐड हो जाएगा केजीज वाले हाउस में. नाउ लेट अस सब्ट्रैक्ट हियर. 0 में से 0 गए 0, अगेन 0 माइनस 0 0, 6 माइनस 0 इज 6, 1 minus 1 is 0. So this is our answer for grams, 600 grams. Now we will find out for kg. देखिए यहाँ पर हमें ऐड करना होगा 1 kg क्योंकि यहाँ पे से हमने सब्ट्रैक्ट किया है ग्राम्स वाले हाउस में से. So here we will get 11 plus 1 is 12. Now this is our final answer children. The final answer is 12 kgs 600 gram. This is the total weight of her bag and the total weight of all the vegetables she has bought from the market. Now we will solve the next question. This is question number 7. Harish brought 2 kg 500 grams of turmeric, 5 kg 200 gram of chili, 4 kg 700 gram of coriander and 10 kgs of salt from grain market. What is the total weight of all the goods? बच्चों यहाँ पर भी हमें कुछ शॉपिंग की डिटेल्स दी हुई है. हरीश मार्केट से कुछ
स्पाइसेस लेके आया हुआ है, कुछ ग्रेन्स लेके आया हुआ है. दे आर टर्मरिक, चिली, कोरिएंडर एंड सॉल्ट. वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल वेट ऑफ ऑल द गुड्स दैट हरीश हैज ब्रॉट फ्रॉम द मार्केट. सो दिस क्वेश्चन इज जस्ट लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन. जिस तरह से हमने पिछले क्वेश्चन में सारी यूनिट्स को ऐड करके टोटल वेट निकाला था बैग का, उसी तरह से यहाँ हमें टोटल वेट निकालना है सारे गुड्स का. सो वी विल ऐड हियर इन kgs and grams. So because they are asking for total, we will do here addition. First we will find out for turmeric. We will write down all the details. Turmeric is bought for, in kg it is given 2 kgs and grams we have 500 grams. We have mentioned here. Next we have chili. Chilies, children, we have 5 kgs and in grams we have 200 grams. Moving on. Now we will write for coriander. For coriander, children, the weight is 4 kg 700 gram. So 4 we are writing in kgs and 700 grams in the gram unit. Now we will write down for salt. Children, for salt here we have only 10 kgs and no grams, so we will write down here 0. Now children, we will add here to find out the total weight. We will start adding from grams. देखिए यहाँ पर 0 0 0, this will be equals to 0 only. हम आगे ऐड करेंगे, फिर से हमारे पास है 0 नेक्स्ट हाउस में. Now we will add 5 plus 2 is 7, 7 plus 7 is 14. Here we have got our answer from gram house. Now let us find out for kgs. In kgs, 2 plus 5 is 7, 7 plus 4 is, children, 11, 11 plus 10 we have to do, we can find out here, that is 21 kgs. Now you can notice here in grams we have more than 1000 gram, क्योंकि यहाँ पर 1000 ग्राम से ज़्यादा है, यहाँ पर हम 1000 माइनस कर देंगे. So children, after subtracting 0 minus 0 is 0, again 0 minus 0 is 0, 4 minus 0 is 4, 1 minus 1 is 0. So here we have got our final answer from grams, that is 400 grams. अब ये जो हमने 1000 माइनस करा है, you know that ये kgs में जाके बन जाएगा 1, which is equals to 1 kg and we are going to add here. So 1 plus 1 is 2 and here we already had 2. So this is now our final answer, that is 22 kgs 400 grams is the total weight of all the grains that Harish has brought from the market. Children, we have solved this question. Now we will move on to the next question. This is question number 8. It is not related to word problem. Question number 8 में कुछ parts दिए हुए हैं. बच्चों, यहाँ हमें convert करना है किलोग्राम से ग्राम्स में. जिस तरह से हमने पिछले क्लासेस में ये कॉन्सेप्ट सीखा है, जब भी हमें किलोग्राम से ग्राम्स में कन्वर्ट करना होता है, दैट मीन्स फ्रॉम बिगर यूनिट टू द स्मॉलर यूनिट, हम करते हैं मल्टीप्लाई. किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ? 1000 से, बिकॉज 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम. So children, first part is 3 whole 1 upon 2 kilogram is equals to dash gram. अब देखिए यहाँ पर किलोग्राम्स में हमें दिया हुआ है fractions. Okay, this is mixed fraction. यहाँ पर हमें दिया हुआ है 3 whole 1 upon 2. आपको पता है ये फॉर्म में होता है QRD, that is quotient, remainder and divisor. इसे हमें सबसे पहले कन्वर्ट करना होगा बच्चों improper fraction में, then only we will be able to convert kilograms into grams. किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट सीखिए. जो डिनोमिनेटर होता है वो यहाँ पर डिवाइजर होता है. इसे हम क्या करेंगे? पहले मल्टीप्लाई करेंगे क्वेश्चन से. सो D will be multiplied by Q. Then the answer that we get, we will add their remainder. This R is equals to remainder and then denominator or divisor you can say, it will remain same. किस तरह से सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आप 2 को मल्टीप्लाई करिए 3 से, जो आंसर आएगा उसमें हम ऐड कर देंगे 1 और यहाँ जो डिनोमिनेटर होता है वो सेम रहता है. सो हियर वी विल गेट 2 3s are 6, 6 plus 1 is 7 and then in upon we will write down 2. अब हमारे पास आंसर आ गया है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं ग्राम्स में. अब आपको पता है बच्चों, केजी से ग्राम्स में जाने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से. तो चलिए इसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं. देखिए यहाँ आंसर मिला है हमें 7/2. यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे इसे 1000 से. देखिए ये जो है
फ्रैक्शंस में दिया हुआ है हमें 7/2। इसे हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, जो डिनोमिनेटर में होता है वो डिवाइड हो जाएगा 1000 से, फिर जो आंसर आएगा उसे हमें मल्टीप्लाई करना होगा 7 से। तो सबसे पहले हम 2 को डिवाइड करेंगे 1000 से। किस तरह से करते हैं बच्चों, आप डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं और लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। सी हियर, सबसे पहले हम 2 डिजिट्स लेंगे, 1 and 0 इज 10। 10 आता है 2 की टेबल में 5 टाइम्स में, सो 2 5s इज 10, रिमाइंडर बचा है 0। इसके बाद ये जो 2 0 हैं जो अनडिवाइडेड रह जाएंगे ये ऊपर चले जाएंगे। वी कैन से ऑल्सो 2 0s are 0, 2 0s are 0, फिर से बचा है 0। सो आवर आंसर इज 500। दिस इज नॉट द फाइनल आंसर। ये जो 500 बचा है इसे हमें मल्टीप्लाई करना होगा 7 से, देन वी विल गेट आवर फाइनल आंसर। सो 7 5s इज 35, इसके बाद आप 2 0 ऐड कर दीजिए। सो नाउ दिस इज आवर फाइनल आंसर चिल्ड्रन, दैट इज 3500 ग्राम। Children, here we have got our final answer. Here we have followed 2 steps. सबसे पहले हमें क्वेश्चन में जो मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ था उसे हमें कन्वर्ट करा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, इसके बाद हमने मल्टीप्लाई करा है 1000 से। नाउ इन द सेम मेथड लेट अस सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 8. This is the second part. 3 whole 2/5 किलोग्राम इज इक्वल्स टू डैश ग्राम। बच्चों यहाँ पर भी हमें जो किलोग्राम दिया हुआ है वो दिया हुआ है मिक्स फ्रैक्शन में। इस मिक्स फ्रैक्शन को हमें कन्वर्ट करना होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। जिस तरह से हमने मेथड सीखा है, आप 5 को सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, जो आंसर आएगा उसमें ऐड कर देंगे 2, इसके बाद हम डिवाइड करेंगे 5 से। सो वी विल गेट हियर 5 3s are 15, 15 में 2 ऐड करिए 17 और डिनोमिनेटर सेम होगा। यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। अगेन यू नो, क्योंकि हमें किलोग्राम से कन्वर्ट करना है ग्राम्स में, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 1000 से। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर में है 5, इसका मतलब ये जो 5 है ये डिवाइड हो जाएगा 1000 से। कितने टाइम्स में होगा आप डायरेक्ट करके देख सकते हैं। हम जब 2 डिजिट्स लेते हैं, 5 की टेबल में 10 आता है 2 टाइम्स में, इसके बाद ये 2 0 कट के 200 बन जाएगा आंसर। सो दिस इज नॉट द फाइनल आंसर। अब ये जो 17 है ये मल्टीप्लाई होगा 200 से। नाउ यू कैन सी चिल्ड्रन, 17 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके बाद आप 2 0 ऐड कर सकते हैं। सो 17 2s is 34, देन वी विल ऐड 2 zeros here. Now this is our final answer. This is 3400 gram. We have converted from kilogram to gram. So again we have followed the same steps. First we have converted mixed fraction into improper fraction, then we have multiplied by 1000 to get our final answer. Let's move on to the next part. This is the third part. 4 whole 3/4 kilogram is equals to dash gram. Again here we have here in mixed fraction the kilogram given. सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करिए, जो आंसर आएगा उसमें ऐड कर दीजिए 3, इसके बाद डिनोमिनेटर में लिखिए 4। सो 4 4s are 16, 16 plus 3 children, here we will get 19, 19/4। अब ये जो आंसर आया है हमारे पास ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसे हमें मल्टीप्लाई करना होगा 1000 से टू गेट आवर आंसर। अब देखिए 4 डिवाइड होगा सबसे पहले 1000 से, हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 1000 को डिवाइड करना है बच्चों 4 से। सबसे पहले 2 डिजिट्स लीजिए, 10 आता है क्या 4 की टेबल में? नहीं आता है। 4 2s is 8, 10 minus 8 is 2, now bringing down 0, 20 आता है 4 की टेबल में 5 टाइम्स में, 4 5s is 20। अब देखिए ये जो 0 अनडिवाइडेड है ये ऊपर जाके 0 बन जाएगा, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। सो आवर आंसर इज 250। 19 को हमें मल्टीप्लाई करना होगा 250 से टू गेट द फाइनल आंसर। लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग हियर। हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 250 को 19 से। Children, here you can see 9 zeros is 0, 9 5s is 45, 4 will go as carry and 5 we will write down here. Now 9 2s is 18, 18 plus 4 is 22. Now we will multiply by 1, 1 zeros is 0, 1 5s is 5, 1 2s is 2. We will get the final answer by adding it. 0 में
0 ऐड करिए, 0 ओनली, 5 + 0 is 5, 2 + 5 is 7, 2 + 2 is 4. So this is our final answer, that is 4750, and in units we have here grams. So our answer is 4750 grams. We have solved the third part here. Now moving on to the fourth part. Here again we have in mixed fraction 2 whole 1/5 kilogram. Convert करना है हमें grams में. So children again here we have to follow the same steps. आपको अभी तक समझ में आ गया होगा. सबसे पहले हम convert करेंगे mixed fraction को improper fraction में. हम यहाँ से start करते हैं. देखिए आप directly भी कर सकते हैं. 5 2 is 10, 10 में 1 ऐड कर दीजिए 11 और denominator same रहेगा. यहाँ हमारे पास आ गया है 11/5. इसे हमें multiply करना है 1000 से. अब देखिए आगे 5 को डिवाइड करना है 1000 से, हमने कर चुके हैं ये. आप देख सकते हैं 10 आएगा 2 टाइम्स में, फिर 2 0 ऐड हो जाएंगे. इसका मतलब हमें 11 को मल्टीप्लाई करना है अब 200 से. सो 11 2 is 22, लास्ट में 2 0 ऐड कर दीजिए. सो हियर वी आर गेटिंग आवर आंसर, दैट इज 2200 ग्राम. दिस इज आवर फाइनल आंसर चिल्ड्रन. सो हियर वी हैव सॉल्व द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज नंबर 12 चिल्ड्रन. नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास वेयर वी विल अंडरस्टैंड सम मोर कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस. Thank you everyone. Keep learning, keep practicing and keep growing. I will see you all in the next class.